Okay, students, let us start. Minerals and their functions, right? Let us start, beta. 6 minerals we have to do. In your NCERT, there are 4 minerals given, but we have to do 6 minerals, right? First is iron. Then we have, after iron, we have calcium. Calcium. Then phosphorus. Then potassium. Right? Then iodine. Then sodium. Let us start with their functions one by one. First of all is iron. What is the role of iron? It helps in formation of hemoglobin. It helps in formation of hemoglobin. बच्चे, what is hemoglobin? आपने सुना है कभी ब्लड टेस्ट करवाया? उसमें आपको HB लिख के देते हैं ऐसे करके. Remember? This HB is hemoglobin, right? होता क्या है hemoglobin? What is the definition of hemoglobin? It is a substance. कहाँ लिखूं? It is a substance, you note down, that carries, that helps. Hemoglobin is a substance that helps red blood cells carry oxygen to different parts of the body. Right? What is the role of hemoglobin? It is a substance that helps red blood cells to carry oxygen to different parts of the body. Right? You might have heard कई लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उनमें HB कम होता है. राइट? तो उनको आयरन की चीजें दी जाती हैं खाने को, या आयरन टैबलेट्स भी आती हैं, वो भी दी जाती हैं. ठीक है? Then comes calcium. Role of calcium, it helps in strengthening मतलब मजबूती देना, bones and teeth. It helps in strengthening bones and teeth. Means मजबूती देना. एक होता है बनाना, फॉर्मेशन बोलते हैं. एक होता है strengthen करना, means strong करना. So calcium, it helps in strengthening of bones and teeth. Right? Then next is, अगर ये strengthen करता है तो बनाता कौन है? So it phosphorus. This helps in building strong bones and teeth. Right? इसके अलावा it makes, दो रोल है इसके. It makes energy rich compounds in the cells. It makes energy rich compounds in the cells of our body. Right? तो अभी हमने क्या करा? Phosphorus, it helps in building strong bones and teeth. And calcium, it strengthens the bones and teeth. Right? Clear? Then comes potassium. Very important. It maintains
blood pressure. It maintains blood pressure. Number 2, blood pressure के अलावा it is important for muscle function. Important for muscle function means हमारी मसल्स जो मूव करते हैं उनकी मूवमेंट में, उनकी फंक्शनिंग में पोटेशियम प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल. इफ आवर बॉडी लैक पोटेशियम, अगर कभी भी हमारी बॉडी में पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे मसल्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे, हम अपना हैंड भी नहीं उठा पाएंगे. राइट? आपने पढ़ा है ना? तो मसल्स जो है इनकी वजह से हम मूव कर पाते हैं. मसल्स along with bones they help in movement of body. ये पढ़ा है हमने. तो अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे मसल्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे. राइट? इज दिस क्लियर? देन कम्स आयोडीन. बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट. Iodine, it controls the functioning of thyroid gland. What is the role of iodine? It controls the functioning of thyroid gland. It controls the functioning of thyroid gland. बेटा ये एक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, ठीक है? That gland, उसकी फंक्शनिंग को ये आयोडीन जो है वो कंट्रोल करती है. अब थायराइड ग्लैंड क्या करता है? ये थायराइड ग्लैंड का क्या रोल है बेटा? दिस थायराइड ग्लैंड, लिखो, इट कंट्रोल्स आवर मेटाबॉलिज्म. ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. आई एम राइटिंग द स्पेलिंग्स हियर. मेटाबॉलिज्म क्या है? जो हमारे सेल्स में, बॉडी के सेल्स में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म. राइट? तो आयोडीन जो है उसका क्या रोल है? ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है. कम है, ज्यादा करना है थायराइड ग्लैंड ने, तो वो कंट्रोल करता है आयोडीन. और थायराइड ग्लैंड का क्या काम है? ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. राइट? Is this clear? Yes, Raymond? मैम आप थोड़ा सा कैमरा अपनी राइट साइड को करोगे? मैम मेटाबॉलिज्म की स्पेलिंग नहीं अच्छे से क्लियर हो रही. यहाँ पे METABOLISM क्लियर? मेटाबॉलिज्म. राइट. भौमिक? यस बेटा. Ma'am, can you explain the function of iodine again? Yes, beta. Iodine, its role is to control the functioning of thyroid gland. There are various glands in your body, right? There are number of glands in your body. One of these is thyroid gland. अब thyroid gland क्या करती है? It controls the metabolism. थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है. और थायराइड ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? आयोडीन. राइट? आपने देखा होगा, यू माइट हैव सीन, देयर आर सर्टेन पीपल जिनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, तो उनकी जो नेक है यहाँ से स्वोलन हो जाती है. हैव यू सीन? लंप सा बन जाता है जैसे पत्थर रखा हो. ग्वाइटर. लेट मी शो यू, जस्ट वेट. मैं आपको ग्वाइटर शो करती हूँ अभी. सहज, स्टॉप इट. आपकी एनोटेशंस हो रही हैं. ये मैं ग्वाइटर शो करती हूँ आपको. ये देखिए, यू कैन सी दिस इमेज. ये ग्वाइटर है, ठीक है? कैन यू सी? ये मेरा जो कर्सर जा रहा है यहाँ पे, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. ये नेक सारा स्वोलन हो जाता है यहाँ से. दिस इज ग्वाइटर. लंप सा आ जाता है, ये देखो,
ये देखो, sometimes operation is to be done to remove it. Okay, can you see here? ये देखो goiter कितना ज्यादा है. It is due to deficiency of iodine. Okay, ये यहाँ पे ये देखो आपके यहाँ गले पे thyroid gland है. If you can see this picture, कहाँ गया? ये रही. If you can see this picture, ये देखो ये thyroid gland है हमारे और ये normal है और इसने इधर साथ में दिखाया हुआ है. ये देखो ये goiter जब swell हो गई आपकी thyroid gland यहाँ से. ठीक है? Can you see this? Can you see? Goiter का रोल क्या है? What is the role of goiter? Iodine to control the functioning of thyroid gland. Clear? Is this clear, Bhaumik? Okay, next is Disha. हाँ जी बेटे. गुड मॉर्निंग मैम. मैम आपने जो एचपी फॉर्म बोली, मैम जो आपने एचपी की वो डेफिनेशन बोली थी ऑक्सीजन के बाद, मैम एक बार फिर से बोल दो. हीमोग्लोबिन की. हाँ जी, it is a substance यस मैम. that help red blood cells to carry oxygen to different parts of body. Right? Yes, Arpit. मैम आपने वहाँ पे क्या लिखा है? मैम आयरन में Helps in formation of HB, hemoglobin. मैम हीमोग्लोबिन क्या होता है? बेटा मैंने अभी बताया, आपने लेक्चर नहीं लगाया. मैम मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी. Hemoglobin is a substance. Hemoglobin is a substance that help red blood cells to carry oxygen. Right? Ishpreet. I want to ask that कि अगर किसी को भी goiter है तो हम जो उसके नेक के अदर पार्ट्स हैं उसको मैम प्रॉब्लम आती होगी बिल्कुल मैम आती है. ब्रीथ लेने में. बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है. चलिए. हाँ जी रेमन. मैम जैसे अभी आपने हमें पिक्चर्स दिखाई थी गोइटर की कि वो बहुत ज्यादा स्वलन हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, तो मैम अगर किसी को गोइटर है और उसकी डेफिशिएंसी कम हो रही है, आयोडीन उसे अब प्रॉपर मिल रहा है, तो वो कम होएगा या वैसे ही रहेगा? हो जाता है. समटाइम्स हो जाता है, समटाइम्स बहुत बढ़ जाता है, तो हमें ये रिमूव करना पड़ता है. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन और डॉक्टर क्या आपको प्रिस्क्राइब करता है और क्या लेवल है उसका. राइट? इट वेरीज. कईयों का थोड़ा सा खाने से ठीक हो जाता है और कईयों का दवाई खाने से ठीक हो जाता है. रादर कईयों को ऑपरेट करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? चलिए. If this is done, let us move to sodium. This is again very important in your body. What? It helps in various metabolic activities. हमारे cells में जो reactions हो रहे हैं, chemical reactions, उनमें सोडियम की जरूरत होती है. It helps in various metabolic activities. Right? ओके. देन इसका एक और रोल है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम. इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ nervous system. You know what is nervous system? You know what is nervous system? It consists of your brain, nerves and spinal cord. Do you remember? 5th में भी करा है आपने. तो nervous system की proper functioning के लिए we need sodium. You might have heard in some cases, at some places, जब लोग बीमार हो जाते हैं, तो what happen is sometimes sodium कम हो जाता है उनकी. जब सोडियम कम हो जाता है तो वो अजीब सी बातें करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है.
राइट। समटाइम्स लोग जब बीमार होते हैं, सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या होता है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, वो भूल जाते हैं कितना कुछ, आपको पहचान भी नहीं पाते, वो अपने क्लोज रिलेटिव्स को भी नहीं पहचान पाते। व्हाई? बिकॉज सोडियम की डेफिशिएंसी हो गई। सोडियम क्या करता है? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। राइट, क्लियर? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए हमें क्या चाहिए? सोडियम। यस अर्पित? मैम बाई चांस हो गया था खड़ा। चलिए, if this is done, we have covered the minerals here, then we will move to next topic. Hurry up. Let us move to next topic if it is done. हाँ जी बिल्कुल इष्टप्रीत, यू आर राइट। चलिए, shall I erase this? तो बच्चे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सब कर लिए हमने, फंक्शंस कर लिए, हमने इनकी डिजीजेस भी करनी है, डेफिशिएंसी डिजीजेस, हर विटामिन की, हर मिनरल की, हर न्यूट्रिएंट की करनी है। ओके, डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो आई मस्ट सजेस्ट यू वन थिंग, मैंने दूसरी क्लास को भी बताया है, एक बड़ा चार्ट ले लो। चार्ट पे आप क्या करो, इधर एक साइड पे लिख लो सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, सारे जितने भी हमने किए हैं, ए बी सी डी ई के। देन नेक्स्ट इज मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम, सारे एक चार्ट पे बना लो, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉलम बनाओ सोर्सेज का, सबके सोर्सेज लिखो। देन नेक्स्ट बनाओ फंक्शंस का, सबके फंक्शंस लिखो। देन मेक नेक्स्ट कॉलम ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस, because every nutrient has its deficiency disease. So make a different column of deficiency diseases and then make one more column of the symptoms. Right? You have to make 6 columns. First is write down nutrients. Which nutrients? Carbohydrates, fats, proteins, vitamin A, B complex, C, D, E, K. Then minerals, iron, calcium, phosphorus, potassium, iodine, sodium. Then write down sources. Then write down functions. Then write down deficiency diseases. Then write down symptoms. One chart will be prepared. Paste it on your cupboard or keep it on your study table so that whenever you pass through it, you go through it. It will be easy for you to learn. Right? On Sunday, do this. Okay? So that you can learn it easily. Is this clear to all? After this, if you remember, I told you there are nutrients that are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. But apart from these things, we need water and roughage also. What do we need? We need water and roughage also. Bache, water and roughage, they are not the nutrients, but still they are required by our body. Water and roughage, they are not the nutrients, but they are required by our body. Okay, is this clear to all? So our next topic that we are going to start is water. Let us start water. Bache, 85% of our blood, it is water. 85% of our blood is water.
right? 85% of our blood is water. Ishpreet, I'll send you beta when it will be done. Okay? Mind it, 85% of our blood is water, right? So, if there is loss of blood, if there is vomiting, or if there is diarrhea, so the water gets lost from the body. Okay, water gets lost from the body and we need to consume the water so that our body remains hydrated, ताकि हमारी बॉडी में पानी रहे. And this loss of water from the body can even lead to death. So we should take proper care. We should drink 8 to 10 glasses of water every day. Right? So apart from this, 85% of our blood contains water. 70% of our body is made up of water. 70% of body mass is water, right? And water is required for all the important functions of our body. Water is required for all the functions in our body. Which are the functions? What functions are done by the water? What is the role of water in our body? Number one, it helps in absorption of nutrients. It helps in absorption of nutrients from food. जो फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, राइट. नंबर 2, it helps in transportation of nutrients. Transportation of nutrients. It helps in transportation of nutrients throughout the body. Throughout the body. Okay, ji. Then number 3 means nutrients that are transported from one part to other. How it is done? They are done with the medium water. Is that clear? Then number 3, it is required for maintenance of constant body temperature. Maintenance of constant body temperature. What does it mean? Your body temperature should be right. So in case of summers, when there are summers, आपकी body में से sweat निकलता है ज़्यादा, right? This sweat, it cool down your body, thus maintaining the right temperature in the summers. और winters में आपको sweating होती नहीं है. Why? Because sweating से cooling होती है. और अगर स्वेटिंग नहीं होती तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, आपकी बॉडी वार्म रहती है, विच इज रिक्वायर्ड इन द विंटर्स. सो दिस वाटर, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. इज दिस क्लियर? राइट. नंबर 4, excretion of waste. Excretion of waste. Excretion, do you know what is the meaning of excretion? Excretion of waste. Excretion means removal of waste from the body.
एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, कैसे वेस्ट बाहर जाता है? इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, स्वेट एंड यूरिन रिक्वायर्स वाटर, अगर वाटर होगा तो वेस्ट बाहर जाएगा, requires water, right? Is this clear? Yes, Disha, any doubt? एक्सक्यूज मैंने जो आपने चार्ट का बताया था, मैं ये आपको ग्रुप में डाल दूंगी इसका होमवर्क। किसका बताया बेटा मैंने? मैं वो चार्ट का। नहीं, दिस इज नॉट अ होमवर्क, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, ये आपको एक सजेशन दिया है मैंने, आप इस तरह से लर्न कर सकते हो, मैंने चेक नहीं करना। दिस इज नॉट द होमवर्क, दिस इज द मेथड आई एम टेलिंग यू टू लर्न। ओके, ओके हाँ, ताकि सारा आपके सामने पड़ा हो, आप इजीली लर्न कर पाओ। भौमिक, यस बेटा। Ma'am, what is it written in fourth? Ma'am, after sweat. Excretion of waste in the form of sweat and urine requires water, right? Okay, ma'am. Thank you. Yes, Raymond. मैम जो से आपने फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है, मैम आपने लिखवाया कि 85% ऑफ अ ब्लड इन अ बॉडी इज वाटर। मैम वो ब्लड सेल्स के अंदर वाटर ज्यादा प्रेजेंट होता है, वो होता है कि कोई अलग मेथड होता है जिसमें वो ज्यादा प्रेजेंट? ब्लड इज डिफरेंट, ब्लड इज डिफरेंट, ठीक है, सेल्स आर डिफरेंट। तो हमारा जो ब्लड है ये कुछ चीजों से बना हुआ है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसके अलावा 85% जो ब्लड है वो पानी से बना है, इसके अलावा सेल्स, ब्लड में 85% वाटर है, राइट? ओके मैम, थैंक यू मैम। Any other doubt? If not, then we are going to do dietary sources of water. एक क्वेश्चन आता है sources of water, वो सोर्सेस क्या है? सी, रिवर, कैनाल्स एंड ऑल, है ना, जहां से वाटर मिलता है। यहां मैं आपसे बात कर रही हूँ डाइटरी सोर्सेस, मींस डाइट में आप कैसे वाटर को कंज्यूम कर सकते हो। आप जब छोटे थे आप पढ़ते थे ना सोर्सेज ऑफ वाटर, वेल्स, रिवर्स, टैप्स, टैंक्स, आरओ, यू रिमेंबर दैट? सो अब हमारा क्वेश्चन है डाइटरी सोर्सेस। Dietary sources of water means how you can take water. What are the sources of water in the form of diet? जो आप खाना खाते हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपके अंदर पानी जा सकता है? Water goes inside your body, right? So, dietary sources of water. Shall we start? Number 1, कोई बता सकता है कैसे आपके अंदर पानी जाता है? Can anybody tell? हाँ जी, रेमन के अलावा और कोई नहीं हाथ खड़ा करता। रेमन। मैम जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि तरी वाली जो होती है हमारी सब्जी, वेजिटेबल्स, मैम उसमें वाटर डाल के उसकी प्यूरी बनती है, मैम उसके थ्रू हमारे उस राइट, तरी वाली नहीं, हिंदी में सूखी सब्जियों में भी we use water to cook food. कोई भी फूड कुक करना है आपको, राइस भी बनाने हैं, तो you need water. This water, it goes inside your body in the form of cooked food, right? Then number 2, simple plain पानी पीते हो, drinking plain water, ग्लास उठाया पानी पी लिया, ये भी जा रहा है आपके अंदर। उसके बाद हाँ जी, कौशलेंद्र कुछ कहना चाहते हैं? यस बेटे। मैम मेरा भी यही था, ड्रिंकिंग वाटर से भी अंदर जाता है। ओके बेटा, वेरी गुड। यस भौमिक।
Ma'am, all the nutrients present in water. Ma'am, water is present in all the nutrients. नो नो, न्यूट्रिएंट्स में कैसे? हम तो वाटर अलग ले रहे हैं, हम तो सोर्सेज पूछ रहे हैं. दिस इज रॉन्ग. हाँ जी, यू ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. कच्चे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हो, सैलेड खाते हो, कुकम्बर वगैरह, अनियन, इन सब में वाटर होता है. ये रेमन ड्रिंकिंग प्लेन वाटर नहीं, क्या पी रही है? हाँ जी, क्या पी रही है बेटा? मैम मैंगो मिल्क शेक. Mango milkshake also contain water, right? So fluids, liquid चीजें जैसे कि milk, soup, juices, right? आपके shakes, beverage, tea, coffee, इनमें भी पानी होता है. ओके जी, इज दिस क्लियर? जो आप कच्चे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हो जैसे कि वाटरमेलन, मेलन, दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ वाटर. ठीक है, कुकम्बर यू टेक, अनियन, इन सब में सब्जियां खाते हो आप, कच्ची सब्जियां, कैरेट्स खाते हो, रेडिश खाते हो, टर्निप्स खाते हो, दे ऑल आर हैविंग वाटर इन देम. ओके, आगे कल इसका टेस्ट करेंगे. यस रेमन? जैसे आपने कहा हम ज्यादातर जो रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें वाटर होता है. मैम बिटर गॉर्ड में भी वाटर प्रेजेंट होता है. होता है. कल हम इसका टेस्ट करेंगे. आप सारे बच्चे अपने पास कुकम्बर लेके बैठना, कुकम्बर लेके बैठना, जो सब्जी है घर में वो लेके बैठना, और साथ में ग्रेटर लेके बैठना. ठीक है, ग्रेटर, यू नो व्हाट इज ग्रेटर? कद्दूकस करने वाला, वो लेके बैठना. कल हम कद्दूकस करेंगे, मम्मी की हेल्प करेंगे. ओके, एनी वेजिटेबल, कोई कुछ भी जरूरी नहीं है, फिर हम देखेंगे. ओके, पीरियड इज ओवर. बाय, वी विल मीट टुमारो.